بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری اس حویلی میں بہت سارے لوگ آئے، بڑے سے بڑے لوگ آئے، چھوٹے سے چھوٹے لوگ آئے، لیکن مجھے زندگی کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ میری زندگی میں آئیں، حادثات آئیں، واقعات ہوئے۔ میرا کیریئر یہاں سے سٹارٹ ہوا، اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں، اسی گھر میں جوان ہوا ہوں، یہیں سے میں نے ایجوکیشن لی اور یہیں سے میں اپنے فلمی کیریئر کا آغاز یہیں سے کیا میں نے۔ ابھی چند دن پہلے میں رحمان فاؤنڈیشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک شخصیت ہے جو کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نام ریاض صاحب ہے۔ اب ریاض صاحب نے جب میری ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے زندگی کی بہت بڑی خوشی ملی۔ خوشی اور غم تو انسان کی زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک ایسی مجھے خوشی ملی کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ریاض صاحب ہیں ہمارے، یہ ان کی مسز ہیں، اور یہ ہمارے بھائی الفت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین ہیں بیسٹ نیشن کے، اور ہم بھی ان کے زیر سایہ ون آف دا ڈائریکٹر ایمبیسڈر ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا ریاض صاحب کی۔ اب ریاض صاحب بتائیں گے میرے بارے میں کہ ریاض صاحب نے میرے لیے کیا کیا، کیا کچھ کرتے رہے، اور میری زندگی میں اس کے باوجود کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں خاص طور پہ ان کو یہاں میں نے بلا کے اور ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ریاض صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ میری فلم کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ سر وہ چند روز پہلے جیسے کہ شاہد صاحب نے فرمایا کہ رحمان فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے دوست ہیں قاضی منشا صاحب، انہوں نے کہا جی آپ کو ایک شخصیت سے ملاتے ہیں۔ تو باہر لان میں شاہد بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں فی البدی ملا، بڑے ان کو فرتے جذبات سے، بڑی گرم جوشی سے، انہوں نے بھی بڑا پرتپاک طریقے سے مجھے ملے۔ میں نے کہا شاہد صاحب میں چائلڈ ہوڈ سے آپ کا فین ہوں، آپ کی جو فلم تھی نا آنسو، جس میں شاید آپ پہلی دفعہ اس میں آپ آئے تھے، اور ندیم صاحب تھے اور دیبا تھیں، فردوس بیگم تھی، اور فردوس بیگم تھیں، اور ایک تھی وہ ماں پارا، شاید وہ شاید آپ کی ہیروئن تھیں۔ جی تو میں نے ادھر ہو کے گفتگو کرو نا، میرے جی وہ جی میں نے نا 150 دفعہ دیکھی فلم۔ تو شاہد صاحب کہتے ہیں کہ یہ غالباً 1970 یا 71 کا زمانہ تھا۔ آئی واز 17 ایئرز اولڈ، میں 17 سال کا تھا اس وقت۔ تو اس وقت یہی ایک تفریح ہوتی تھی جی۔ تو پھر ایک سال کے انتظار کے بعد ان کی فلم آئی تہذیب، غالباً 71 میں یا 72، یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ وہ بھی میں نے کوئی 60-65 مرتبہ دیکھی، اور وہ اس میں یہ جینون انہوں نے نا جی کمال عروج پہ تھا ان کا، وہ جو پاگل والا سین تھا وہ آپ واہ فرما رہے ہیں جی، اس میں گانا بڑا مشہور تھا، لگا ہے حسن کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو۔ تو پھر سر 73 میں یا 70، وہ مجھے ایگزیکٹ یہ ڈیٹوں کا کچھ ہے، پھر امراؤ جان ادا ان کی فلم آئی، جس میں انہوں نے واقعی نواب بھی وہ جو تھا نا خد و خال کا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ وہ بھی میں نے کوئی 100 ٹائم دیکھی وہ فلم جی۔ میں ان کا غائبانہ عاشق تھا جی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتے ہیں، وہ کبھی مراد اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں،
शाहद साहब बहरहाल अभी जवान है, अल्लाह इनकी जवानी सलामत रखे जी। आ मिले हैं सीना चाक आने चमन से सीना चाक, बुए नफस की हर कली बादे सबा हो वाह वाह जाएगी। वाह, सुभान अब इंशाल्लाह ताला हमारे शाहद भाई इंशाल्लाह हम मिले, इनकी खिदमत करेंगे, इनको ज़रा इनकी वो जी जी क्या जी। कहते हैं मुट्ठी चापी करेंगे इनकी तो इंशाल्लाह इनको दोबारा दुआ को। और मैं सर वो अच्छा नहीं, जो मौजूद से मुतल्लिक़ बात करते हैं, रियाज साहब, आपने 150 दफ़ा एक फिल्म देखी, जी जी जब सेकंड टाइम आपने देखी तो क्या रीज़न थी आपके ज़हन में कि मैं क्यों दोबारा देख रहा हूँ? क्या सर चीज़ मुझे रीज़न का पता नहीं है, मैंने बल्कि उसमें एक लतीफ़ा बन गया, क्योंकि वो गालबन ये सनोबर में लगी थी या रतन में लगी जी, थी, हाँ रतन फिल्म में। तो मुझे ना वो टिकट जो खिड़की वाला था ना, वो मैं वो जो बाहर आने वाली सीट होती थी वही लेता था जी। तो वो 25-30 या 40-35 सीटें होती हैं। तो वो मुझे कहता है कि यार इस फिल्म की कमाल है, तू मैं ते हूँ तेरी शक्ल पछान लेना, मैं दूरों देख के तेरी टिकट फाड़ के रख लेना। मैं कहा यार ए मैनू अज तक नहीं पता चलिया कि ये की कमाल है। बहरहाल मैनू ए फिल्म देख के ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं एक अजीब वो दुनिया च बैठा लगता है हूँ। बाज़ दफ़ा तो आपने ऐसा भी किया होगा कि 3 शो चल रहे हैं तो तीनों इकट्ठे देख लिए। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, हाँ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, क्योंकि उस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी। तो बल्कि जो भी मेरा कोई मेहमान गांव से आता था, चल आओ यार तो हम फिल्म दिखा के ले, तो मैं लेके चला जाता था। आपकी फिल्म जो गोल्डन जुबली हुई है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं उन खुश नसीबों में से हूँ, मतलब ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिली, लेकिन एक खुशी ऐसी मुझे मिली इस एरा में, इस टाइम के ऊपर, कि आज तारीख़ है 15 में 2023, हाँ जी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक मेरे फ़ैन आप जैसे भी हैं जिन्होंने मेरी फ़िल्म आंसू 150 दफ़ा देखी, अमराव जान अदा देखी, तहजीब देखी और बेशुमार फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये फिल्में वो हैं 3 कि जिनको मैंने यानी कि अंतहाई यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने एक सीन रखी। हाँ जी। लेकिन आंसू को तो आपने हिर्ज़े जा बना दिया। वो ऐसा था कि उस वक्त यानी कि वो ऐसा उसमें शाहद साहब का किरदार था, कुछ अलाउद्दीन मरहूम, हाँ जी, उनका ज़बरदस्त, बड़ा कमाल ज़बरदस्त किरदार था उनका। तो बेसिकली मैं बड़ा सेंसिटिव माइंड आदमी, मैं किसी की तकलीफ को देख ही नहीं सकता, मैं भूल जाता हूँ अपनी उसमें। तो वो अलाउद्दीन साहब के जो थे ना, वो अब डायलॉग तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जी जी मगर उनकी जो जज्बाती अदाकारी थी ना, वो अक्सर रुला देती थी मुझे। जी जी हाँ। मैं कहता था कि यार ये दुनिया भी इतने जालिम और इतने क्रूअल और वो पहाड़ की संगीनियों के दिल छू लेकिन मंशा साहब, हम तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले क्या बात कि आप इनको लेके आए हमारे पास, नहीं तो एक चीज़ इनके दिलों में भी रह जाती और मेरे दिल के अंदर भी रह जाती कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे आज तक ये पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि कोई अभी भी ऐसे फ़ैन हैं मेरे जिन्होंने मेरी फिल्में 150 दफ़ा देखी। और एक गुजारिश है कि मैं तलाश करता रहा हूँ, वो मैं किसी वक्त तस्वीर शाह साहब को भेजूँगा। एक वो पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी वाले हैं, उन्होंने शाह साहब को बुलाया था कोई 5, 7, 8, 10 साल पहले शायद। तो शाह साहब के साथ मेरी एक बड़ी क्लोज तस्वीर उतरी हुई है, जी जी, वो मेरे पास पड़ी हुई है। वो आप मुझे दीजिए बात वो तस्वीर जो है वो इस बात की तस्दीक है, क्योंकि वो अभी तो नहीं उतरी ना जी, वो तो 10 साल पहले की उतरी हुई है। और मेरा इनकी तरफ बड़ा वालहाना और बड़ा आशिकाना तरीके से देखना उस तस्वीर में, ये इस बात की मोहर तस्दीक है कि मैं जेन्युइनली इनका फ़ैन हूँ
ان کا پیار کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے ریاض صاحب میں آپ کو بتاؤں, مجھے اپنی زندگی کے اندر خوشیاں تو بہت ملی, مایوسیاں بھی ملی, لیکن مجھے زندگی میں اپنے کیریئر میں یہ تیسری خوشی جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے. بڑی ذرا نوازی جی. مجھے پہلی خوشی اس وقت ملی جب کہ میں 85 میں کینیڈا ٹورانٹو میں وہ نیاگرا فال پہ تھا, تو بڑی سخت سردی تھی, برف تھی چاروں طرف, برف تھی. بحال ہے 31 دسمبر تھا. میری ساری تقریباً فیملی وہاں پہ رہتی ہے, تو ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے ایسے ہی, مطلب جسٹ ٹو ہیو اے پکنک. تو وہاں پہ صرف ہماری فیملی تھی, کوئی 18-20 بہنیں میری بھانجے بھانجیے, میرے بہنوئی وغیرہ. تو وہاں پہ ایک فیملی آئی, تو وہ فیملی امریکہ سے آئی. تو الفت بھائی سننے والی بات ہے, منشا صاحب بڑے غور طلب بات ہے یہ. تو دنیا کے میں اس کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں, اور وہاں پہ ایک فیملی آئی, اور اس فیملی نے پہچانا, اور انہوں نے مجھ سے آٹوگراف لیے. سب سے پہلے تو مجھے زندگی میں نے کہا دنیا کے اس کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں میں, اور وہاں پہ مجھے ایک پاکستانی فیملی ملی ہے, بڑی خوشی ہوئی. عذاب کی بات ہے خوشی کی. پھر دوسری مجھے خوشی ملی جب کہ ٹورانٹو کے اندر ہی وہ ایوارڈ سامنے وہ پڑا ہوا ایوارڈ 25th اینیورسری اور میرے کیریئر. اچھا مجھے وہاں کے جتنے بھی ہائی فائی لوگ تھے, جو ایم پی ایز وغیرہ تھے, اباؤٹ 1200 پیپل, انہوں نے مجھے یہ شیلڈ دی. یہ زندگی کی میری ایک بہترین یادوں میں یاد ہے. ماشاء اللہ. اور ایٹ دس ایج جو میں کیریئر, جب منشا صاحب نے مجھے ریاض صاحب سے ملوایا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ کی فلم دیکھی آنسو 150 دفعہ, تو میں نے کہا جناب آپ تو ہمارے گھر تشریف ضرور لائیں. شاید وہی عزت مداحوں کی وجہ سے ملتی ہے. جی جی جو بالکل. آرٹسٹ اپنے مداحوں کو اتنی عزت دیتا ہے, جی جی اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ کرتا ہے. جی آمین. بہت بڑا فن ہے. جی جی شاید بھائی آپ کی فلم تھی نوکر موٹی تھا, ہاں جی ہاں جی. وہ اس میں آپ نے بڑا ہی یعنی کہ روٹین سے ہٹ کر کردار ہاں ادا جی. کیا, بہت ہی عوامی جو عام آدمی کا کردار ادا کیا. وہ کیسے آپ نے کنسیو کیا اتنا اچھا کردار؟ وہ سب لوگ منور جی کے ساتھ بڑی دوستی تھی میری, اچھا بہت یاری دوستی. تو وہ جو اس وقت کے ڈائریکٹر تھے حیدر چودھری صاحب, تو وہ ذرا تھوڑا سا مطلب اللہ ان کو جو نصیب کرے, میں ان کے ساتھ ذرا کام نہیں کرتا تھا, لیکن چونکہ منور بہت دوست تھا میرا, تو منور نے مجھے ریکویسٹ کی کہ یار ایک دن دے دیں. تو وہ سارا کام جو ہے نوکر موٹی میں 16 سین اور ایک گانا, وہ ایک دن میں ہوا ہے, صبح 10 بجے سے لے کے رات ایک دن میں. ایک پورا گانا, گانا نہیں, بیچ میں سین بھی تھے, پورے 16 سین 14 15 16 سین بھی تھے اس کے اندر. بڑی ہاں جی. تو وہ حالانکہ آرٹسٹ جو ہے نخرہ دکھاتا ہے جی میری اور مصروفیات ہیں یا میں تھک گیا ہوں, تو یقیناً جب آرٹسٹ تعاون کرتا ہے ڈائریکٹر کے ساتھ, پروڈیوسر کے ساتھ, تو وہ تو اصل میں یہ سارا ٹیم ورک ہے. ہمارا جو کام ہے نا, یہ سارا ٹیم ورک ہے. تو جس زمانے کے اندر میں بات کر رہا تھا, جس زمانے کے اندر جب میں کیریئر میں آیا اپنے, تو اس وقت میڈیا جو تھا, اخبار, ایک وہ تھا شمع رسالہ نکلتا تھا, ہاں جی شمع, وہ نکلتا تھا. ایک کوئی اور تھا اخبار, ایک مجھے یاد نہیں آ رہا. نگار نہیں جی, نگار تو کراچی سے نکلتا تھا. اخبار جہاں نہیں, اخبار جہانی ایک اور بھی تھا, فلمی اخبار تھا اس کا نام. مصور. مصور جی جی مصور نکل. تو اس وقت زیادہ تر وہ لوگ اسی کو دیکھتے تھے, ہاں جی. اور جو کچھ انہوں نے اس میں لکھ دیا غلط ہے صحیح ہے وہ فائنل ہے. فائنل ہو یعنی اس کی جتنی مرضی تردید کر لیں آپ, اس کا جتنا مرضی آپ کچھ کر لیں, انہوں نے کہنا کہ جناب اب دادا صاحب ہم جس زمانے میں جا کے بیٹھتے تھے, وہ لوگوں نے کہا جی آج کل تو شاہ صاحب
दादा साहब बहुत आगे बैठ रहे हैं। अच्छा जनाब, उस पर भी इतना तो वैसे भी तो उस वक्त के मीडिया में और आज के मीडिया में बस ज़मीन आसमान का फर्क है। अब एजुकेशन बढ़ी है, सोशल मीडिया है, ज़री सी भी बात होगी वो आपको पता है फ़ौरन उस पर आ जाएगी। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ टोरंटो के अंदर 23 फरवरी को, हाँ तो हाईवे पे जा रहे थे हम, तो बेटा मेरे साथ था, सही फैमिली साथ थी। तो इतना बड़ा रियासत में एक्सीडेंट हुआ कि अल्लाह ने बचा लिया बस हमें। तो विद इन 2 आवर्स टाइम पूरी दुनिया के अंदर मीडिया में से इतना तेज़ हो गया, कहने का मकसद मेरा ये। सही बात है। तो रियाज साहब, मुझे तो आपसे मिलके इतनी खुशी हुई कि इस उम्र में भी हमारे चाहने वाले भी हैं। सर So I'm very अल्लाह thankful ताला and आपकी grateful to खुशियाँ you. सलामत रखे और आपको हमेशा खुशियों से हमकिनार अल्लाह ताला करते रहे। अवार्ड भी मिलता था। उस ज़माने में मुसव्वर अवार्ड भी था, जी जी, मुसव्वर अवार्ड भी था, मेरी सबसे बड़ा अवार्ड हुआ करता निगार अवार्ड, कराची का था निगार अवार्ड, वो अवार्ड। मेरी ये खुशबख्ती है और मैं आई एम प्राउड ऑफ यू सर कि आपने so बड़ी nice of you, मोहब्बत, बड़ी शफकत फरमाई और बड़ी वालहाना तौर पे आप हमसे मिले और बड़ी इज़्ज़त बख्शी। मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड अगर मुझे मिले तो ये उससे ज़्यादा बहुत 1000 टाइम बहुत मैं इसको ज़्यादा यानी कि मोतबर समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया समझिए आपका। वो सारा जो वो अवार्ड है ना जी, वो जो वो देते हैं 14 अगस्त पे और जी 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 जी, वो सब आर्टिफिशियल और सारा कुछ है। ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन लव है, जेन्युइन मोहब्बतें हैं, ओरिजिनल ये है। इंशाल्लाह इनमें ताला एक कायम रहेंगी, हमारे आखिरी सांस तक कायम रहेंगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे जी। मेहरबानी। और मज़े की बात बताता चलूँ कि वो नौकर वोटीदा मेरी मिसेज ने कोई मल्टी टाइम्स वो देखी। अच्छा, सारे मल्टी ऐसा ये बहुत बड़ी इज्जत अफजाई होती है कि एक सुपरस्टार जो जेन्युइन हीरो हो और वो अपने ऐसे फैन से मिले जो इस हद तक उससे मोहब्बत करता हो कि सैकड़ों दफ़ा उनकी फिल्मों को देखे, तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एजाज़ की बात होती है। लेकिन मैं उस आर्टिस्ट को उस कहीं ज़्यादा अजीम समझता हूँ कि वो अपने उस फैन को घर बुलाकर उसकी इज्जत अफजाई करे और उसके साथ टाइम सर्व करे। मैं सर मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन स्टार की निशानी है, ताकि अपने उसके जो फैन हैं, जो उसके लवर हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। ये सर जो एक तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है और एक जो ब्लड होता है ना जी, जी जी बिल्कुल। उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। आप देखें कि ये छोटा बड़ा तो मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता, वो तो अल्लाह ने यानी कि वो तकसीम मेरे अल्लाह की है, मगर जो एक खून का असर होता है ना जी, जो जिस ख़ानदान से इनका तल्लक है तो वो सखी ख़ानदान था जी। और जो सखी लोग होते हैं वो बड़े फ़राख दिल होते हैं, उनके दिल में मोहब्बतें होती हैं, वो ऊंच नीच नहीं समझते। सारी दुनिया में भी आई एम रॉन्ग या राइट ये सुना ही है मैंने कि जी जब लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो वो अपने 125-30 जो गांव थे वो सब छोड़ आए थे, कुछ क्लेम में नहीं लिया उन्होंने और उनकी बुनियाद फटी हुई थी जो पुराने कुछ साफी लोग कहते हैं। बहुत कुछ दिया उन्होंने। ये जो शाहद भाई जैसी फैमिलीज होती हैं ना, ये अल्लाह ताला दुनिया में देने के लिए भेजते हैं, लेने के लिए नहीं भेजते। हाँ जी। जी जी, मैं रियाज भाई आपका बड़ा जी। शाह साहब, आपका दौर बहुत ही क्लासिक दौर था जी और जी। साफ सर आप जैसे जो हीरो जो भरपूर अल्लाह ने बासलाहियत उन्हें बनाया था, उन्होंने किरदार अदा किया उस दौर में। आवाम के लिए जो इंटरटेनमेंट का ये सबसे ज़्यादा साफ सुथरा और एक बेहतरीन जो है सोर्स था।
मुझे याद है कि फैमिलीज पूरी जब उनका होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा हमने कोई इंजॉयमेंट करनी है या तफरी करनी है तो पूरी फैमिली पूरी बरादरी बल्कि पूरा जो कई दिन प्रोग्राम बनते थे, कई दिन प्रोग्राम बनते थे। तो उस दिन ईद होती थी और ख़ासकर ये जब आपकी फिल्में वहीद मुराद साहब की नदीम साहब की और आपकी फिल्म जब ये 3 हीरोज़ की जब फिल्म आती थी तो उनमें कंपटीशन होता था और जो जिसके ज्यादा लवर थे उनकी कोशिश होती थी कि हमने इस फिल्म को बार बार देखना जैसे कि रियाज साहब बैठे। अच्छा, मुझे सबसे मज़े की बात यह है, ये मैं हल्फन कहना चाहता हूँ कि मुझे 150 मरतबा में मैंने जब देखी है वो ऐसे महसूस होता था कि मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये सबसे पता नहीं, मैं उस वक़्त मेरी 17 साल उम्र थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मैं क्यों देखता था, मैं बस मैं घर से निकलता था तो रतन सेन में मैं बदामी बाग में रहता था और बिलीव मी कि मैं बदामी बाग से पैदल रतन सेन में आता था और फिल्म देख के पैदल ही वापस चला जाता था। जब दूसरी फिल्म देखी जाए तो यकीनन उसमें फन की वो महराज होती है, उस लेवल पर आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया होता है कि वो फिर दोबारा से देखने की तलब करता है। तो ये है वो फनकाराना सलाहियतें जो आपके द्वारा आज की जो फिल्में हैं मेरा ख्याल में दूसरी दफा तो पहली दफा और ये भी बात मैं हल्फन ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जब से हमारे दौर के ये हीरो, अल्लाह इनको बहुत सलामत रखे, नदीम साहब को अल्लाह तंदुरुस्ती दे, ही इज़ वेरी नोबल मैन, शरीफ आदमी, जेंटलमैन आदमी, शाहद भाई हैं और कमाल मेरा फेवरेट था, शाहद भाई मेरे फेवरेट थे। तो जब से वो दौर गया ना, हल्फन कहता हूँ मैं, सिनेमा का मैंने रुख नहीं किया, मैंने फिल्म नहीं देखी। और अगर कभी एक आध दफ़ा वो जीवा में मेरे ख्याल ये ना इनकी बहनें लंदन से आई हुई थी ये वो, तो मुझे वो जीवा में ले गए, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे नंबरिंग ख़त्म हुई और मैं सोया हुआ खुदा की कसम। मैंने मुझे बहुत दफ़ा उठाया, मैंने कहा यार वो जो एक आर्ट था ना जी, जो दिल को छूता था, जो दिल के तारों को छेड़ता था। नहीं वो नहीं। हम आखिर में जनाब मंशा साहब, हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि एक तो मसला ये उल्फत भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपना उल्फत रसूल साहब जो है ये तो फिल्मी दुनिया के बाद में राज दरूने महफना रहे हैं ना। जी इनका सीना राजों का सीना है, मालूमात आपकी बातें जानते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जो बात है ना, ये आपके मद्दा, ये जैसे ये पैदल वहाँ से आते थे, इस सिलसिले में बड़ा एक खूबसूरत शेर इन पर साबित करता है कि सुर्खी खारे मुबीना से पता चलता है तेरे दीवाने कहाँ आए कहाँ तक पहुँचे। वाह वाह, तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आप तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे, भाभी आप तशरीफ़ लेके आई, आप तशरीफ़ लेके आई, भाई आए। अपना कौसर परवीन साहब जो आपका पोर्ट्रेट बना रही हैं सर, इंशाल्लाह ताला इनको मैं बस आपकी अच्छी सी कोई तस्वीर मैं देखती हूँ ना, फिर मैं आपको बना के पेंट करके जी इनकी वो जो तस्वीर लगी हुई है ना वो जी ज़रूर और फिर उस पोर्ट्रेट की एक रूनुमाई होनी चाहिए सर, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जी, आप फिक्र ना करेंगे, ये तो हमने आपको मोहब्बत के तरीके से बुलाया, अब आपको दूसरे तरीके से बुलाया। नहीं सर नहीं, मैं मेरी प्रोफेसर आपका यकीनन पोर्ट्रेट इस लेवल का होगा कि इस हवेली के इस ड्राइंग रूम में यहीं पर नहीं बाहर हम करेंगे ना फंक्शन मैं शाहद भाई उस पे इतने बेहतरीन रंग भरना है वो आपकी उस पे पूरा आर्ट जो है जल गया। शाहद भाई ने फरमाया ना कि जी दूसरे तरीके से बुलाएंगे, वल्लाह मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कीमत का दोस्तों अंदाज़ा कीजिए, हम बिक गए खलूस खरीदार पे। वाह वाह वाह, तो इस ये मेरे लिए आज यानी कि
मैं उस खुशी का मेरे पास अल्फाज नहीं है हमारे पास मैं उसका अहाता ही नहीं कर सकता हमारे पास वो ये है कि जुल्म तहसीन तरह शब माताब से आपको देख कर अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। ये पिछले साल बेगम साहब थी ना जी, वुमेन चैम्बर, लाहौर वुमेन चैम्बर की फॉर्मर, आप शाइस्ता हैं, हाँ जी, ये बताया गया ये उसकी वुमेन चैम्बर की वाइस प्रेसिडेंट थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक फंक्शन में ना, ये जो सदीक सेंटर के सामने एक सिनेमा नहीं बना फॉर यू, क्यों, हाँ जी, वहाँ पे वो डाकशाला और इन्होंने, मुझे भी मदऊ थे, वाह, तो गवर्नर सरवर साहब भी मदऊ थे, हाँ, तो मेरे से तीसरी सीट उनकी थी गवर्नर साहब की। तो वो आए, मेरे पास रुके और मुझे हाथ पकड़ के कहते चलो आओ ऊपर चले। मैंने कहा आप जाए, मैं आता हूँ। मैं नहीं गया उनके साथ। वाह, और इनके लिए जो दिन वो है ना, मैंने पीर को खींच के वाह, क्या बात है, सर बड़ी बात है सर। नहीं, आज हमें रास्ते भी बड़े बंद मिले, हम उधर से हाँ, आए ना, बड़े वो रास्ते बंद रिंग मिले। रोड अच्छा जी, बंद रिंग कब? रोड से आया ना, तो दीवानों के लिए रास्ते क्या कहते हैं, वहाँ जी। जी वो जी, बस उन्होंने पहुंचना है हर हाल में। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह ताला अनकरीबी मैं अपनी फैमिली से आपको मिलवाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको जी तंदुरुस्ती दे Thank you, और बस मेरी सेहत दे। दुआ को रहे आप आप। हमेशा हंसते रहें। आपके लिए स्पेशल नाम ले के दुआएं करेंगे। है तो हम Thank you. गुनाहगार हैं, बहुत ही फासिक फाजर हैं, मगर मेरा अल्लाह पे मान है कि अल्लाह मेरी ठुकराते नहीं है, मानते हैं। थैंक यू इंशाल्लाह। शहद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने फैंस को इतना टाइम दिया। हाँ, नहीं, थैंक यू जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मनशा साहब आपका बड़ा शुक्रिया। आपने मिलवाया, सिलसिला तो आपके सर जाता है। वो तो उनकी तो कैफियत ये है कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर ये हाथ मेरे को आगे बात। मैंने आपसे बताया ना जी, मुझे कभी भी ये मैं किसी के मर्तबे से, मेरा अल्लाह जानता है, फकीर आदमी हूँ मैं किसी के मर्तबे से नहीं मिलता। बेशक मैंने बताया ना, लोग है जी आगे बढ़ के मिलते हैं जी, फलां से मिले, उससे मिले। उसने स्पेशल मेरे पास रुका, कहते हैं आए जी ऊपर चलते हैं। मैं कहा सर आप जाए, मैं आ जाता हूँ। ये जबरदस्त है। किएगा ना। हाँ, वो मैं आपको भेजूंगा जी। बड़ी मैंने संभाल के रखी हुई, इतनी बड़ी वो इतनी बड़ी तस्वीर है जी वो, हाँ जी, यानी कि वो तस्वीर हाँ, कौशल के लिए तो मसला तस्वीर का नहीं है, ओके, तो मसला ये है